मॉडलिंग में फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. You have read about Newton's law of cooling in your school life in 11th or 12th. What it says? The rate of change. The rate of change of temperature of a body is directly proportional to the difference of what? Temperature and between surrounding the temperature. body and its surroundings. Difference between the temperature of the body And the temperature of the surrounding. And that of the surrounding. If temperature of the body T0 with the temperature of the surrounding at any time t, then what you will get? Rate of change of temperature. यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? ना कैपिटल T is the dependent variable, small t is the independent variable. The rate of change क्या होगा? ना dt by t, then t by small dt is directly proportional to t minus t0. t minus t0. तो dt by dt यहाँ पर हम कूलिंग बोल रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो दैट्स व्हाई जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, माइनस के इंटू टी माइनस t0, where k is the proportionality constant. टेम्परेचर राइज करने के लिए k का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. यहाँ पर लॉ ऑफ कूलिंग हम बोल रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर टेम्परेचर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एज नेगेटिव. This much thing is here. Let us do some problem. ये लिख लो पहले.
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन एक भेजा हूँ ग्रुप में, देखो निकल के। एक क्वेश्चन भेजा हूँ, देखो, चेक करो, पढ़ो क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, the rate at which a substance cools in moving air is proportional to the difference between temperature of the substance and the air. ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, if the temperature of air is 40 degrees Celsius and the substance cools from 80 degrees C to 60 degrees C in 20 minutes, then what will be the temperature? What will be the temperature of the substance after 40 minutes? So what is T0? T0 is 40. 40. The differential equation is dt by this equal to minus k into T minus T0, that is minus k into T minus 40. The dt by T minus 40 equal to minus k dt, that is ln T minus 40 equal to minus kt plus c. That is the solution. What are the initial condition? What are the initial condition? The substance cools from 80 degrees C. That means the initial conditions are, initial conditions कैसे निकालते हैं? Cools from 80 degrees C. That means when time is 0, कैपिटल T का वैल्यू क्या था? 80 था। 20 मिनट के बाद क्या हुआ? T का वैल्यू हो गया 60। तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूट करने से क्या मिलेगा, फटाफट बताओ। C का वैल्यू मिलेगा ln 40। Am I right? Yes, sir. तो T इक्वल टू 20 पुट करने से क्या मिलेगा? ln 20 इक्वल टू माइनस 20k प्लस C। Yes, sir. C का वैल्यू ln 40 है, तो ln 20 इक्वल टू माइनस 20k प्लस ln 40। तो 20k का वैल्यू क्या होगा? 20k का वैल्यू ln 40 माइनस ln 20, दैट इज ln 2। ln Yes, 40 minus ln 20,
that is ln2. तो k का वैल्यू क्या हुआ? ln20 by sorry ln2 by 20. the solution is ln t minus 40 equal to क्या था? minus kt minus ln2 by 20t. c का वैल्यू कितना हुआ था? ln c का 40. वैल्यू होता है ln40 plus t plus ln40. So now what I can write? This is the solution. Question में क्या दिया गया है? What will be the temperature of the substance after 40 minutes? So when small t equal to 40, ये क्या होगा? ln t minus 40 equal to minus ln2 by 20 into 40 plus ln40. That is ln40 minus 2 ln2. That is ln40 minus ln4. That is ln10. तो t minus 40 कितना होगा? ना 10. तो t का वैल्यू कितना होगा? ना 50 डिग्री सेल्सियस.
Done, sir. हो गया? Yes, sir. 2 क्वेश्चन दिया हूं और मटेरियल में भी कुछ क्वेश्चन था। मटेरियल में मैंने माइनस के नहीं लिखा हूं, के लिखा हूं, प्लस के, so don't be confused. Next is rate of growth or decay. Rate of growth or decay. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में और कुछ नहीं है। रेट ऑफ ग्रोथ और डिके में क्या स्टेटमेंट है? द रेट ऑफ चेंज of a quantity y at any instant or at any time t is directly proportional to the quantity present at that time. नॉर्मली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके का प्रॉब्लम तुम केमिस्ट्री में करते हो, तो क्या होगा यहाँ पर? सो dy by dt rate of change is directly proportional to y. For growth dy by dt will be plus ky. For decay dy by dt will be similarly minus ky. Then the differential equation you can solve.
हो गया? Yes, sir. Can I erase? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जिट करो, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन हो जाओ. How much can be expected at 8 hours at the same rate of growth? Find also how much time will lapse before the active ferment grows to 8 times its initial value. So what is the differential equation? यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है. Let y be the quantity of active ferment be present at any time t. So y is the dependent variable, t is the independent variable. So the differential equation will be what? dy by dt equal to ky. The dy by y equal to k dt. Integrating both sides, you will get ln y equal to kt plus c. At the initial time, growth कितना था वो मुझे मालूम नहीं. तो so let at t equal to 0, y is y0. So what I will get? This is the solution. ln y0 equal to c. ln y0 equal to c. Hence वहां पर दो कंडीशन था, इमीडिएट मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं. तो ln y इक्वल टू kt प्लस ln y0 सोल्यूशन हो गया, और दैट इज ln y by y0. Why it is y by y0? As y not is minus. Sir minus आ जाए. Minus ln y0. The active ferment क्या हुआ? Active ferment doubles in 2 hours. Doubles in 2 hours. What is its meaning? Who can say? Sir ln2 is equals to 2k हो जाएगा. When t equal to 2, y equal to 2y0. Yes sir. This is equation 1. This is equation number 2. Equation 2 is the modified solution. Equation 2 क्या हो जाएगा अभी? ln2 is equals to 2k. ln 2y0 by y0 equal to 2k. The k is ln 2 by 2. ln 2 by 2. The solution क्या होगा?
So the solution became ln y by y0 equal to ln 2 by 2 into t. Equation 2. This is equation number 3. इक्वेशन 2 हमारा मॉडिफाइड सॉल्यूशन था, वो चेंज हो गया। अभी दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 8 घंटे के बाद क्या होगा फॉर t इक्वल टू 8। फॉर t इक्वल टू 8 व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन को और क्या लिख सकते हैं? अच्छा, चेंज करते हैं। ln y by y0 इक्वल टू ln 2 by 2 into 8। टू कैंसिल करने से 4, तो ये हो जाता है ln 2 to the power 4 ln 16। तो y by y0 क्या होगा ना 16, तो y क्या होगा 16y0। The ferment grows 16 times of its initial value at the end of 8 hours. At the end of 8 hours. सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, थोड़ा पढ़ो। फाइंड ऑल्सो हाउ मच टाइम विल लैप्स बिफोर द एक्टिव फर्मेंट ग्रोज टू 8 times of its initial values। सेकेंड क्वेश्चन में व्हेन इनिशियल वैल्यू हम y0 लिए थे, तो y जब इतना होता है तो क्या होगा। इक्वेशन 3 क्या होगा अभी? इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 3 ln y by y0। ln y by y0 means ln 8y0 by y0 equal to ln 2 by 2 into t। ln 2 by 2 into t। तो ln 8 equal to ln 2 by 2 into t। तो 2 ln 8 equal to ln 2 into t। ये क्या होता है ln 64 equal to ln 2 into t। तो t होता है ln 64 minus ln 2। कितना होगा? ln 32। चलिए माइनस प्लस ln 8 by ln 64 by ln 2, not minus, by। हाँ सर। That is 64 means what you can say 2 दूना 4 2 to the power 6. 6 ln 2. 2 to the power 6 6. 6 Yes, sir. ln 6 अधिक हो जाएगा then by negative ln 2, that is 6। six रह जाएगा t is equal to 6। Hence active ferment grows 8 times its initial value at the end of 6 hours। देखो
ग्रोथ डीके का 5-6 प्रॉब्लम मैंने मटेरियल में दिया हूं तुम्हारा बुक का प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो इसलिए बुक का प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो मटेरियल में सॉल्व हुआ है। मटेरियल में वो सॉल्व हुआ है, इसलिए वो बुक का प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, दूसरा प्रॉब्लम कर रहा हूं। तो वो प्रॉब्लम मटेरियल से देख सकते हो, देखोगी एग्जाम में करना है तो देखना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम बाकी है, मिक्सिंग प्रॉब्लम, जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। Done, sir. तुम्हारा मिड सेमेस्टर सिलेबस है अप टू 2.5, नॉट अप टू 2.10। मिड सेमेस्टर सिलेबस अप टू 2.5। Okay, sir. सर फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से नहीं कर सकते क्वेश्चन सॉल्व? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मिड सेमेस्टर में आएगा नहीं। ओके। एक सेकंड बैक करिएगा। रोल नंबर 426, प्रेजेंट सर। 427, Present, sir. 28, यस सर। 29, Present, sir. 30, प्रेजेंट सर। 31, 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, प्रेजेंट सर। 39, 40, प्रेजेंट सर। 41, Present, sir. 41. 42, Sir. 42, Present, sir. 43, Present, 44, प्रेजेंट सर। 45, Present, sir. 46, प्रेजेंट सर। 47, Present, sir. 48, 49, Present, sir. 50, 51, Present, sir. 52, प्रेजेंट सर। 53, प्रेजेंट सर। 54, प्रेजेंट सर। 55, Present, sir. 56, Sir.
57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, now you can exit. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. This is your first class, na? No, sir. Before this, we had a math class. Oh, math class. It is going on or completed? No, sir. It's just completed. Just got over. Okay. मॉर्निंग सर। हाँ, good morning. सर आपने लास्ट के 2 क्लासेस के नोट्स अपलोड नहीं करे हैं, क्लास शीट्स। अभी करता हूँ। कब तक किया हूँ? Analytics 10 ड्राफ्ट क्या लिखा है? Okay.
Should we start with? Yes, my voice is audible and clear. Yes, sir. Yes, sir. So I have uploaded both class 10 and 11 of kinetics. Today, before I finish the kinetics topic, let me take your doubts first. Actually, that is important. In the mid-semester, we are going to get the questions up to catalysis. Okay, means to the end of reaction rate, that activated complex theory or effect of temperature. Okay. So डाउट क्लियरिंग करते हैं पहले, असाइनमेंट कर ले या उससे पहले आपका कोई अदर डाउट से वांट टू क्लैरिफाई? यस, क्या हुआ? डाउट नहीं है? चैप्टर फर्स्ट में डाउट है। हाँ हाँ, कैन यू रिपीट? चैप्टर फर्स्ट में डाउट है। बोलो। एक्चुअली मैं तो थोड़ा कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक छोटा सा कंफ्यूजन था मेरा। जब आपने ये कैलकुलेट कर रहे थे ना, जो हम लोग निकाल रहे थे फॉर यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर के लिए रेट हम लोग निकाल रहे थे वो वैन ऑफ रिएक्शन के थ्रू, तो उस पे आपने एक बार लिया था E is equals to del H hash plus RT minus del N hash RT। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था सर? ओके, एक्चुअली वो फॉर्मूला अभी आपका जो वैन ऑफ आइसोकोर है वहां से वो उसको डेवलप किया गया है। ओके सर। मैं आपको क्या बोला था, आपको अगर वो फॉर्मूला में कुछ आपको याद नहीं आ रहा है या आपको मैंने एग्जाम में याद नहीं आ रहा है, तो आराम से आप क्या करो ना, डेल्टा एच हैश को एक्टिवेशन एनर्जी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, because that is a constant of proportionality that will come in the beginning. For unimolecular reaction that will come as E, and for biomolecular reaction that will come as E square. Okay, तो आप अगर चाहो तो उसको हम कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, एंड जस्ट अ मिनट। ओके ओके, थर्मोडायनामिक्स का गिव्स ड्यूअल इक्वेशन मींस क्या डिराइव कर दूं चिराग? यस सर। अच्छा ओके, काइनेटिक्स का डाउट नहीं है? मींस काइनेटिक्स का असाइनमेंट एंड काइनेटिक्स का कोई डाउट नहीं है? यस सर क्वेश्चन 6 सर। रिवाइज नहीं किया। हाँ सर क्वेश्चन 6 सर। हाँ, असाइनमेंट तो हाँ सर। असाइनमेंट आपने सब लोग नहीं किए शायद, मुझे लग रहा है कि रेस्पॉन्स जो है वो इतना ढीला है, मींस मुझे लग रहा है कि आपने किया ही नहीं। किया तो और क्या करूं, मींस जबरदस्ती करके आपको बोलूं कि सबमिट करें? आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल डू द थिंग्स। मैं ओनली पढ़ाता रहता हूं क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है इंटरेक्शन के। क्लासरूम होता तो इंटरेक्शन थोड़ा बेटर तरीके से होता। ओनली वन साइड डेलिवरेशन हो रहा है, आप में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है। एनीवे, जो भी है मैं असाइनमेंट को डिस्कशन कर देता हूं आपके साथ। और दूसरा बात, गिब्स ड्यूअल इक्वेशन पूछा है तो गिब्स ड्यूअल इक्वेशन भी बता देता हूं। असाइनमेंट आपके पास क्वेश्चन है कि नहीं ना, मैं शो करूं?
सर है सर। है सर। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पहले डिस्कशन करते हैं। लेट मी सी दैट। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, टोटल विंडो शेयर करता हूँ, इसमें नहीं होगा। दूसरा फाइल भी ओपन करना पड़ेगा ना। ओके, बोलो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, देन सर 4। 4। अच्छा, ओके, ठीक है। और नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है तो यस। यस सर। ओके, ठीक है। मैं ज्यादा पूछना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोग अगर किए हो तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूँ एंड 4 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, a plus b reversibly gives you intermediate, then that gives you p। वो बोल रहा है कि फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रिटर्न मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो a plus b that gives you intermediate, then product। Question number 2, a plus b that gives you intermediate, then product। This is K1, K minus 1 and K2. Okay, so rate is equal to your K2 into I. Applying steady state approximation, di by dt is equal to 0, or K1 AB minus K minus 1I minus K2I is equal to 0, or I is equal to, yes, yes, somebody wants to ask something? आप यहाँ पे रिप्लेस कर लो। तो रेट इज इक्वल टू K1 K2 A B K minus 1 plus K2. So this can be taken as one constant, A into B what the question is asking, find the rate constant of product formation. Yeah, this is the rate constant. So K1 का value is given, K2 value is given, K minus 1 given, K2 given। अरे वैल्यूज दिया गया है कि नहीं? 10 to the power 5, 10 to the power 4, 10। अरे रेट कांस्टेंट सब दिया गया है कि नहीं? यस सर। तो डाल सकते हो? यस सर। तो आई थिंक यू कैन डू इट। यस। अच्छा, बाकी रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रॉब्लम हुआ? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। So that the time required for arriving at maximum concentration of B max का evaluation I have done in the class ना, B max evaluation।
Yes, sir. I'm showing you where we have done it. B max evaluation collision theory नहीं, उससे पहले। अच्छा, ओके, 7, 8, 6, 5, अच्छा 5 है, 4। This is what we have done. आपको V max इवैल्यूएशन के लिए dB/dt को 0 करना है, फास्ट डेरिवेटिव को 0 करना है। कितना नंबर का क्लास है ये? काइनेटिक्स 4, तो काइनेटिक्स 5 में ये होगा। दिस इज व्हाट। सो पहले हमने B max को 0 करके इसका, ये तो C हो गया, दिस वन dB/dt इज इक्वल टू 0। सो उसके बाद हमने T निकाला होगा, दिस इज नोन एज T max। देन T max को सब्स्टिट्यूट किया होगा B max में, यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा रीअरेंज करके यू हैव टू कम टू दिस फॉर्मूला। B max is equal to A0 K2 by K1 K2 divided by K1 minus K2। वो क्या बोला है प्रूव करने के लिए? कोई अलग चीज बोला है क्या? कहाँ चला? वो T max पूछा है, तो T max तो और भी इजी है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट में लिखा हूँ, एग्जाम में यहाँ तक आता है 1 by K1 minus K2 ln K1 by K2। अरे कोई पूछा था, उसको मिल रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, दिस इज क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में आई हैव डन इट। ओनली आपको फास्ट डेरिवेटिव को 0 करना है। मैक्सिमम आपको कैसे मिलेगा? आपका बी का कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो कैसे वैरी कर रहा है, वो मैक्सिमम पहुंच रहा है, फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट में आपको निकालना है। तो ये कर्व के पीछे जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको आप फास्ट डेरिवेटिव को 0 कर दो, दैट्स ऑल। तो dB/dt इज इक्वल टू 0, b का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है। 0 करने के बाद हम जब सॉल्व करते हैं तो वी आर अराइविंग एट दिस रिलेशन T max इज इक्वल टू 1 by K1 minus K2 ln K1। ये 4 नंबर हो जाएगा तो ना मैं फिर करूंगा इसको। No, sir, got it. हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद let me come to 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 to 10। यस सर 10 थोड़ा समझ नहीं आया सर, बता देंगे। ओके ओके। बाकी ऊपर सर 6, 7, 8, 9। यस सर हो गया। 7। ओके, क्वेश्चन 7, फाइंड द डिकम्पोजिशन of A, find the rate of appearance, अच्छा for the decomposition of A the values are okay, find the rate of appearance of B taking 2 molar concentration of A at any time। ठीक है, okay, rate of appearance of okay। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? A के ऊपर डिपेंड करेगा, इधर तो K1 into A, are you correct or not? Yes. K1 into A or not? Question number 7। ओह सॉरी सर, हम लोग डाउट क्लियरिंग में थे। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो A gives you B, at the same time gives you C, K1 and K2। Rate of appearance of B means dB/dt क्या होगा? K1 into A at any point of time, तो K1 is given ना,
Yes, sir. 2 into 10 to the power minus 3. K1 is 2 into 10 to the power minus 3. So 2 into 10 to the power minus 3 into concentration of a starting at that point of time. The rate appearance of B taking 2 molar concentration. Oh, 2 molar concentration of A at any time T. Taking 2 molar concentration in the beginning, वो नहीं बोल रहा है. Are you getting my question? Taking 2 molar concentration at T time ना, तो ये जो T time के लिए तो मैं लिखा हूँ, is not it? This is instantaneous rate ना. At any time T, rate of formation of B क्या होगा? dB by dt, that is K1 into A. So that is 4 into 10 to the power minus 3. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. And similarly for C के लिए K2 into A. अगर कोई बोलेगा A कितना रहेगा at that point of time, A तो वो बोल दिया है 2 molar, we are starting with 2 molar. Is not it? At any time T, what is the concentration of A? 2 molar ना. तो B and C you can, वो B only पूछा है, C अगर पूछा होता तो that would have been K2 into A. Okay. Easy है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह है. So 8 तो आपका 8 में सर 9 हाँ. 9 हाँ 9 तो मैं क्लास में किया हूँ. 9 I have done in the class. Reversible मैं दिखाता हूँ आपको. I'm just showing you. I have done it in the class. 9 means ये 3 में शायद आएगा. I hope reversible reaction हम लोग पहले किए थे. We have done it in the beginning. ये reversible है. Reversible का ये क्वेश्चन. अरे समझ में आ रहा है? Yes. This is the question. I have done it in the class number 4. अब देख लो क्लास नंबर 4 में exactly this question I have done. देखा? ना और एक बार करूंगा. Yes. Yes sir. मैंने और एक बार कर दूंगा और आप देख के करोगे इसको. सर देख के कर लेंगे सर. अरे ओनली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको ये फॉर्मूला जो फॉर्मूला आपको चाहिए दैट इज 1/t ln xc by xc minus x. ठीक है. ये जो k है दैट इज एक्चुअली k1 plus k minus 1 मींस फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड. तो आपका रेट कांस्टेंट का रेशियो इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 4 गिवन. सो इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन and forward rate constant is given, cannot you calculate backward rate constant? Kf by Kb is equal to 4. Forward rate constant is given 10 to the power minus 2. So cannot you calculate backward rate constant? Yes? Yes. तो backward rate constant निकाल दो. Total rate constant जो है effective rate constant that is Kf plus Kb. तो ये हो गया आपका 1.25 10 to the power minus 2. तो इसका वैल्यू आपको पता चल गया. 30 सेकेंड्स के बाद आपको x निकालना है. तो टाइम तो आपको पता है. बाकी रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट xc आपको निकालना है. तो xc को निकालने के लिए you know that again equilibrium constant is 4. Concentration of product by reactant is equal to 4. So concentration of product at equilibrium is xc. Reactant is 0.01 से शुरू किया था. तो 0.01 minus xc मैं यहाँ पे लिखा था आपको दिखाने के लिए. इनिशियली 0.01 था, प्रोडक्ट 0 था. 30 सेकेंड्स के बाद 0.01 minus x
and this is x. But equilibrium में क्या होगा? 0.01 minus xc, this is xc. So this ratio is given. So you have to solve xc. तो xc हमने solve किया था 0.008. And once you get xc, you can put in the final formula. K is equal to 1 by T ln xc divided by xc minus x. xc is 0.008. Time is 30 seconds. And equilibrium constant, effective equilibrium constant आपने calculate किया था 1.25 10 to the power minus 2. So 1.25 10 to the power minus 2 is equal to 1 by 30 ln 0.008 divided by 0.008 minus x. x को solve करना है. होगा? Yes. Okay, sir. So this question actually I have done in the class. Question number 9 I have done in the class. Question number 10 ये भी मैं तो क्लास में सॉल्व किया हूँ. क्यों आपको नहीं समझ आया सर, एक बार और बता दीजिए ना. अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ, बट मैं क्लास में इसको बोला था आपको कि you may get a question to show the relation between rate constant and equilibrium constant of activation. Anyway, मैं और एक बार कर देता हूँ. क्लास में मैं किया हूँ, दिखा दूंगा आपको. क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या है ना, a plus b equilibrium constant ab has, then that gives you product. This is the k. k लिया है ना, तो क्या लिया है ना, k2. ओह, तो आपको k में क्लास में जब किया था, नहीं सर k ही लिया था शायद, मुझे याद आ रहा है, या k1 k2 कुछ लिया होगा, मुझे पता, मैंने याद नहीं. बट एनीवे, इसमें क्या है ना, आज पर द एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी वो बोल रहा है कि रेट इज आपका प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. आपको याद होगा हम लोग क्या निकाल लेते हैं ना, k has is equal to equilibrium constant is equal to product concentration divided by reactant concentration, or AB has activated complex concentration is equal to K has A into B. Okay, ये एक रिलेशन आपका है. अभी as per activated complex theory, rate is proportional to frequency of decomposition, or rate is equal to proportionality constant will be total activated complex concentration into nu. Nu को हम लोग क्या रिप्लेस किए थे, E is equal to h nu से रिप्लेस किए थे. Nu is equal to E by h, और rate is equal to AB has को यहाँ से रिप्लेस किए थे, K has A into B. एनर्जी आपको पता है as per the transition state theory or activated complex theory that remains in the order of kT, where K is the Boltzmann's constant. तो रेट क्या आया था हमारा ना, K equilibrium AB into Boltzmann constant is replaced by universal gas constant divided by Avogadro number. तो ये आपका रिलेशन था. ये रेट का एक्सप्रेशन एज पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. दिस इज द रेट एक्सप्रेशन एज पर activated complex theory, and this is a one step reaction. Therefore, law of mass action can also be applied. If you apply the law of mass action and write the rate, can I write that rate is equal to, अब इसको भूल जाओ बीच का हिस्सा, a plus b k प्रोडक्ट. तो क्या होगा, k into b. That is your relation number 3. अच्छा, रेट आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके निकालो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी यूज करके निकालो, कॉलिजन थ्योरी यूज करके निकालो, रेट तो सेम ही होगा. तो इफ यू कंपेयर 2 and 3, what you are going to get, K has A into B is equal to, sorry, into RT by NH is equal to K into A into B. समझ में आया?
हो गया रिलेशन? Yes, sir. Yes, sir. ये मैं क्लास में भी किया हूँ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो पढ़ा रहा था, आई हैव डन इट। काइनेटिक्स का 10 नंबर क्लास। ओहो, ये 10 नंबर क्लास आपको शेयर नहीं किया था, बट पढ़ाया था तो आपको याद होना चाहिए। मैं शायद शेयर नहीं किया था इसको आपके साथ। ये आप देखो, यहाँ पे इंपोर्टेंट भी लिखा हूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। सर अब पेपर आप बनाते हैं कि कोई और बनाता है? पेपर क्यों? Yes, sir. क्यों? आपको पेपर से क्या, जो भी बना है दुनिया में, जो भी दुनिया में बना है, कोई बाहर से ही बना है, आपको मैं जो डिस्कशन किया हूं, इफ यू आर गोइंग थ्रू द क्लासरूम, क्लास नोट्स एंड एवरीथिंग, क्लास प्रोसीडिंग आप फॉलो अप करते हो, 100% यू कैन आंसर, नॉट 99.99%। एब्सोल्युटली, मैं करूं जो भी करे। एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं सब तो नहीं कर पाऊंगा, बट somehow that I assign the person to do that. Okay, anyway, आपको देखो, आपको चीजें समझना है। जो कोई क्वेश्चन करे उसमें क्या प्रॉब्लम है? You should have a confidence that I can answer all the questions because I have understood the concept. Concept अगर समझ रहे हो तो you can do that. कोई कैसे भी पूछे। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 सर। देखो, छोटा छोटा क्वेश्चन है जो इंटरेस्टिंग लॉजिकल क्वेश्चन कुछ है। वो क्वेश्चन दिया कि नहीं मुझे पता नहीं है। हाँ, एक दिया, कैलकुलेट द टाइम, ये दिया होंगे। इससे भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन नंबर 11 किया? यस, हैव यू डन क्वेश्चन नंबर 11? सर ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। हाँ। Yes, sir. ओहो, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा। चलो, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन, हाँ ये दिया गया है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 15 मैं करता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ना, आपको हाफ लाइफ दे दिया होगा, पूछा होगा कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, याद है? यस सर सर। वो तो रहता है ना फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड रेट कांस्टेंट निकाल के पकड़ना, डालना है। बट कभी कभी अगर एमसीक्यू में आ जाएगा तो थिंग्स विल बी, आप क्या कितना डालोगे? अब 99 के लिए, 99 के लिए ना 99.9 एक रिलेशन है ना, डबल हो जाएगा अप्लाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक है 10 टाइम्स, शायद 99.9 शायद 10 टाइम्स ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of a reaction is 10 times the time required for apply। इस तरह से कुछ था ना? आई गेस वो 99% था, इज 10 टाइम्स। हाँ 99, और एक था 90% शायद डबल हो जाएगा, 90% में शायद डबल हो जाएगा ना क्या? ये सब मतलब इजी क्वेश्चन है, डिवाइड करके आप कर सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैंसिल आउट करके। अदरवाइज आप मैनुअली भी कर सकते हो, रेट कांस्टेंट को निकाल के सब्स्टिट्यूट करके। एनीवे, सब देखो, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग होता है। इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन डू इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 हो गया तो? यस सर। 15। Yes, sir. अच्छा, ये 15 क्वेश्चन चाहिए आपको। ओके, द प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो और भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 वो पूछ रहा है कि ln k वर्सेस 1/t का कर्व। ये तो ln k इज इक्वल टू ln a, फॉर्मूला क्या था? k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e बाय rt। तो ln k यहाँ पे लिया गया है ln a माइनस e बाय rt। तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है,
तो आपका इस टाइप का कर्व आएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपका स्लोप क्या है देखो, स्लोप इज इक्वल टू EA/R ना। सर माइनस आएगा क्या प्लस? अरे एनर्जी का एक्टिव एनर्जी का मतलब क्या है, प्लस एंड माइनस वो तो डिपेंड करता है वो रिलीज एब्जॉर्ब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कर्व का जो साइन है वो नेगेटिव है, मींस सॉरी स्लोप जो है वो स्लोप नेगेटिव है। एक्टिवेशन एनर्जी एवरी टाइम पॉजिटिव होगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. कैलकुलेशन में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज एनर्जी तो पॉजिटिव फैक्टर है, स्लोप इनटू आर। तो स्लोप इज गिवन ना, स्लोप दिया गया है ना। आर यू गेटिंग इट? आपको क्या प्रॉब्लम था ना क्या? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट? 1.2 10 to the power 4 स्लोप इज गिवन। स्लोप का यूनिट और टेम्परेचर ग्रेडियंट में है, ठीक है, ओके। तो स्लोप इनटू आर का वैल्यू आप जिस यूनिट में डालोगे 8.314 डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आपका जूल में आएगा। अगर कैलोरी में डालोगे यहाँ पे 1.98 और 2 कैलोरीज तो एक्टिवेशन एनर्जी आपका कैलोरी में आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो क्वेश्चन सर नंबर पर स्लोप के फॉर्मूले में तो सर माइनस EA/R लिखेंगे ना सर? आप माइनस ER लिखो या ये मैंने एक्टिवेशन एनर्जी फाइनली आप प्लस में ही एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है, दैट इज द नेचर ऑफ द कर्व, ओके, बट एक्टिवेशन एनर्जी इज एवरी टाइम पॉजिटिव। सर केमिस्ट्री का आप एग्जाम पैटर्न थोड़ा बता दीजिएगा मिड सेम्स का। हाँ बता दूंगा, बता दें। कितना टाइम है? टाइम अभी तो टाइम है सर। हाँ 16 to 20। क्वेश्चन नंबर 16 to 20। सब में क्लास में आई थिंक किया, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। सर ये तो सारा आपने क्लास में एक बार करवाया था ना? सभी क्लास में किया है, सारा करवाया हुआ था। If you carefully note down everything I have discussed in the class. कैटलिस्ट का ये भी बता दिया हूँ आपको, पॉइजन नेगेटिव कैटलिस्ट पॉइजन कैसे काम करता है। कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, स्टिल इवन इन द रेट एक्सप्रेशन, दैट आल्सो वी हैव डन। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। एनीवे और एक आपका था, कोई पूछ रहा था गिब्स डुएम इक्वेशन। गिब्स डुएम इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम हुआ? This is the Gibbs Duhem equation actually. Someone is asking that Gibbs Duhem equation. आपको कहां पे प्रॉब्लम है बोलो? कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है G, सपोज G is a free energy actually extensive property which is a function of temperature, pressure, number of moles of different components. Okay, so what is the exact differential if you write? That means if you change temperature to T plus dt, pressure to P plus dP, number of moles to N1 plus dN1, थोड़ा थोड़ा चेंज हम सब पैरामीटर में कर देंगे। तो हाउ टू एक्सप्रेस dg? dg को कैसे एक्सप्रेस करेंगे?
that is del g by del t dt when p n1 n2 constant plus del g by del p dp rest of the parameters constant and so on. अब लिखो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं dgtp, दैट मींस टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाएगा, ओनली कंपोजिशन में चेंज कर रहा हूं तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, प्रेशर टर्म भी आपका जीरो हो जाएगा, ओनली rest of the terms will remain. Rest of the terms means del g by del n1 term will be there, all other parameters constant, del g by del n2 term will be there, is not it? And what is in free energy with respect to number of moles keeping all other parameters constant? That is your chemical potential. So I have replaced this one mu1 dn1, mu2 dn2 and so on. ये चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ mu1 dn1 plus mu2 dn2 and so on. This is equation number 1. Again, G तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा. मैं आपको बोला था कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इवन वॉल्यूम सपोज आई एम राइटिंग, तो वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इनटू पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, number of moles of second component into partial molar volume of second component. So कोई भी partial माने extensive property can be expressed in terms of intensive properties of individual components multiplied by the number of moles. तो उसी concept में मैं लिखा हूँ G is equal to n1 mu1 plus n2 mu2 plus n3 mu3. both side को differentiate किया हूँ. differentiate करने के बाद dg is equal to n1 d mu1 plus mu1 dn1. Then I have aggregated the d mu1 terms and d n1 n2 terms. Okay, so that is your dg. So if you compare, अब देखो ये दोनों को अगर आप compare करोगे तो this is at a constant temperature pressure. Okay, so if you compare, then what will happen? अब देखो लेफ्ट साइड सेम है, सो राइट साइड मस्ट बी आल्सो सेम. सो राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे n1 d mu1 mu2 करके टर्म्स है, mu1 d n1 n2 करके टर्म्स है, बट यहाँ पे तो ओनली mu1 d n1 टर्म्स है. सो इफ यू कंपेयर 1 and 2 you will find that this term will be 0. So summation of ni d mu is equal to 0. That is your Gibbs-Dual equation. That's all. Yes. बाकी अगर कुछ फिजिकल कॉन्सेप्ट या माने केमिकल पोटेंशियल का जो बैकग्राउंड है उसमें अगर डाउट है तो अलग बात है, बट गिब्स-डुअल इक्वेशन तो वेरी सिंपल. दो ही काम आपको करना है. एक तो डीजी का एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर डाल के आपको एक इक्वेशन मिलेगा, दूसरा डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन मिलेगा, आपको कंपेयर करना है. Yes. Yes sir. आपने खुद का नोट बनाया, कैसे पढ़ रहे हो? Have you prepared your own note? Or how you are doing? Yes sir. सर आपने जो लिखवा रहे हैं उससे नोट्स बनाए हो? हाँ डेफिनेटली, उससे बाहर कुछ नहीं चाहिए. मैं सब कुछ आपको बोला हूँ और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, किस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ सकता है ये भी मैं आपको बोला हूँ. आप पूछ रहे थे किस क्वेश्चन के बारे में, बोलता हूँ. मिस आपका जो मेंटर है वो कुछ शेयर किया है कि नहीं? एग्जाम पैटर्न एंड जो मॉड्यूल का जो ट्यूटोरियल है. Yes sir. Yes sir. हाँ, तो उसमें तो आई थिंक सब कुछ है. इफ यू लुक इनटू दैट यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग. ये क्वेश्चन पैटर्न देखा आपने? Yes sir. Yes sir. वही है, एवरीथिंग विल बी सेम. आपका सेक्शन ए 20 मिनट्स आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें 5 MCQs विल बी देयर कैरिंग 2 मार्क्स ईच. आपका सेक्शन ए में 5 MCQs होगा या शॉर्ट क्वेश्चंस होगा,
एंड एमसीक्यू एंड एसएटी लिखा है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन है, आइदर एमसीक्यू होगा या शॉर्ट क्वेश्चन होगा, बट अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो आंसर यू हैव टू राइट डाउन मैक्सिमम विद इन 1 और 2 लाइंस मैक्सिमम, एंड उसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे 5 शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स के लिए एग्जाम होगा, उसका 20 मिनट्स होगा, एंड ये खत्म होने के बाद आपको सेक्शन बी का एक्सेस दिया जाएगा। बट ये मत सोचना कि आपका अगर जल्दी खत्म हो जाता है वी कैन स्विच ओवर टू सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन बी एक पर्टिकुलर टाइम में आपको ओपन होगा, ओके। तो सेक्शन ए के बाद आपका 5 मिनट्स का ब्रेक है, फिर सेक्शन बी जो 30 मिनट्स है, एक्चुअली 20 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स। आप 30 मिनट्स के लिए आंसर लिखने की कोशिश मत करना, 20 मिनट्स में आपको खत्म करना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, द क्वेश्चन इज सो प्लान दैट यू कैन गिव द आंसर विद इन 20 मिनट्स, आराम से आप दे सकते हो, ओके। सो 10 मिनट्स आपका अपलोडिंग टाइम है, सो बी केयरफुल फॉर दैट, ओके। 10 मिनट 20 मिनट्स के बाद आपको अपलोड करना है, 10 मिनट्स अपलोडिंग टाइम में, एंड एक ही क्वेश्चन आपको करना है, उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपको कोई एक क्वेश्चन करना है 10 मार्क के लिए, ठीक है। यस सर, ये अपलोडिंग टाइम में आपने बोला कि 30 मिनट्स के अंदर ही अपलोड करना है कि उसके बाद अपलोड करना है? नहीं, वो बाद में तो अलग से टाइम नहीं देते हैं। ये क्या लिखा गया है यहाँ पे? सर अपलोडिंग टाइम वाला समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दीजिए ना। टोटल 20 + 5। अच्छा, 1 मिनट आप वेट करो। असिस्टेंट कंट्रोलर से पूछते हैं कि 20 मिनट्स अपलोडिंग टाइम क्यों लिखे हैं, मैं तो नहीं देखा था इसको, वेट करो मैं पूछता हूँ। आज मीटिंग है एक्चुअली, एक इवनिंग में एक मीटिंग है, मैं आपका पूछता हूँ, मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं करता हूँ मेंटी ग्रुप में आपको भी कर दूंगा। जस्ट अ मिनट, अगर उठाते हैं तो बात कर लेते हैं। अच्छा, 19th का जो आपका ना शायद वो क्लास में है, वो बैक करेंगे, बैक करने के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मुझे जितना पता है जो 30 मिनट्स टाइम है, इसके अंदर आपको 20 मिनट्स में लिखना है एंड 10 मिनट्स में इसको अपलोड करना है। तो आप अपलोडिंग टाइम आपका 20 मिनट्स के बाद ही शुरू हो जाता है, मींस 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है अपलोड करने के लिए। And always remember, try to finish your writing job within the stipulated time, so that the uploading time you will utilize only for uploading. आप सोचोगे सर मेरे तो 10 मिनट है, मैं अगर और 2-3 मिनट लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन डू इट विद इन 7 मिनट्स, बट दैट विल बी अ रिस्की जॉब, बिकॉज यहाँ पे आपका जो मॉड्यूल ऑप्शन है, सॉरी जो ड्राइव ऑप्शन है वो नहीं है। कंट्रोलर मिले थे रास्ते में, थोड़ा मुझे बोल रहे थे कि इस बार ड्राइव ऑप्शन नहीं दिए हैं जो असिस्टेंट कंट्रोलर है। आज मीटिंग है, इसके बारे में थोड़ा पता चलेगा, और बट आई थिंक ड्राइव ऑप्शन नहीं है, और लिखा है शायद ना, नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल टू सबमिट द आंसर फाइल इन सेक्शन बी, यू कैन लुक इनटू दिस नंबर 8, दैट मींस देयर इज नो ड्राइव ऑप्शन, देयरफॉर you have to upload through माने in the Moodle. If you are not able to upload in the Moodle, definitely you have to go for the next means makeup examination, means और एक बार आपको मिड सेमेस्टर देना पड़ेगा। Are you getting my point? टाइम 10 मिनट्स तो बहुत कम है। हम्म, अपलोडिंग टाइम 10 मिनट्स तो बहुत कम है। 10 मिनट्स कम है? हाँ, यस सर, वो फोटो खींचो, स्कैन करो एंड देन इट टेक्स टाइम।
सर लैपटॉप में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा ना सर? मैं उधर देख से अपने रहा हूँ, यस देख रहा सर। हूँ। या तो अपलोडिंग टाइम आपके लिए 20 मिनट्स लिखे हैं। सर आई Then exam आपका अराउंड हो जाएगा 1.5 आवर का। सर आई थिंक वो ऐसे है कि मतलब सेक्शन भी आप 30 मिनट्स आपके पास राइटिंग टाइम है, अगर मतलब आप उसमें भी सबमिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना पेपर के बाद एक्स्ट्रा 20 मिनट्स रहता है सबमिशन के लिए। हाँ शायद अगर ये ठीक ठाक है तो आज दे आर नॉट गिविंग द ड्राइव ऑप्शन, आई थिंक दिस टाइम दे हैव इंक्रीज्ड। ओके, फिर भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। But I think this will be correct because they have given in writing that. I don't think that 10 minutes is there. I think as per the information you are uploading time for section B is 20 minutes. 20 minutes is more than enough. You can do it. मैंने आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर उतना लगेगा भी सर, क्योंकि फोन में से पहले करना पड़ेगा, फिर लैपटॉप में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा फाइल। नहीं, आप एवरी टाइम लैपटॉप में डाटा केबल में करो, डोंट डू इट थ्रू मेल, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप में तो डेटा केबल वर्क ही नहीं कर रहा है सर। क्यों? आई डोंट नो व्हाई सर। आप कल थोड़ा मैं ट्राई कर रही थी बट उसमें नहीं हो रहा था, कुछ इशू आ रहे हैं। डाटा केबल में तो आराम से हो जाना चाहिए। डाटा केबल में फास्ट रहेगा एक्चुअली। इफ यू अपलोड टू मीन सपोज शेयर विथ मेल, देन मेल से फिर डाउनलोड करके आप सेव करोगे लैपटॉप में, मैंने डेस्कटॉप या लैपटॉप में, वहां से आप अपलोड करोगे, तो आई थिंक इट इज बेटर टू यूज डाटा केबल। फिर भी आप देख लो, थोड़ा नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, मेल में करोगे। एंड किट मेल यूज करना, जीमेल यूज मत करना, ठीक है। साइज तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट दैट इज क्वाइट ह्यूज, आपको कुछ वरीड होने की जरूरत नहीं है। साइज इज नॉट अ फैक्टर। You cannot, but never use the scanned pages, always use the PDF. Okay. तो आप जब उसको फोटो लोगे, फोटो या स्कैन करोगे, जो भी आप करो, उसमें शेयर जब करोगे आप, आज PDF कर लो या सेव आज PDF कर लो, सो दैट उसका जो साइज है वो कम रहेगा। क्योंकि सबके पास तो PDF एडिटर नहीं होगा। आप PDF फाइल का स्क्वीज भी कर सकते हो, साइज भी कम कर सकते हो। अगर आपके पास PDF एडिटर है, देन यू कैन गो फॉर स्क्वीजिंग दैट फाइल, उसका वॉल्यूम भी मैंने साइज भी कम कर सकते हो। ऑनलाइन भी कुछ अवेलेबल है एप्स टू मैंने रिड्यूस द साइज, बट ये सब काम करने के लिए इतना टाइम नहीं होगा। तो आई थिंक यू कैन स्ट्रेट वे स्कैन एंड शेयर इट एज PDF और सेव इट एज PDF फॉर्मेट में करो। आप मॉड्यूल में वही काम करोगे जब आपका ये होगा ना, जो कोई जो मॉक टेस्ट होगा 19th को, आपका काम ये नहीं है कि आप लिखो आंसर। मॉक टेस्ट का कोई तो इवैल्यूएशन नहीं होगा ना, मॉक टेस्ट इज टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। तो आप देखो आपको कितना टाइम लगता है, 2-3 पेज को स्कैन करके उसको PDF में कन्वर्ट करके लैपटॉप में ट्रांसफर करोगे, वहां से अपलोड करोगे, कितना टाइम एक्चुअली आपको लगता है। थोड़ा इसको 2-3 बार करके वेरीफाई करो। दैट हैज टू बी done repeatedly to ensure that you will be able to transfer the files and upload it within 1 or 2 minutes or maximum 3 minutes. अच्छा चैतन्य, सर करना है। यस यस सर जो अपलोड करना है PDF में, उसमें सर जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो उसको अलग अलग करना है कि सारे पार्ट को एक ही में लिख के PDF बना के भेजना? पहला क्वेश्चन मींस लॉन्ग क्वेश्चन का बात आप कर रहे हो तो? यस और लॉन्ग क्वेश्चन आप तो एक ही करना है, एक ही क्वेश्चन करना है, एक ही PDF आपको अपलोड करना है। ओके सर। अरे सिंगल PDF, बी केयरफुल एक्चुअली, क्योंकि एक बार आपका जो रेस्पॉन्ड है वो जब मॉड्यूल में रिसीव हो जाता है, then you cannot upload the second time a new file into it. Are you getting my point? Therefore, first you finalize which file has to be uploaded. When you are sure, then you upload. Otherwise, एक बार respond आपका ले लिया, फिर Moodle आपका respond नहीं ले सकता है। Are you getting my point? Okay sir. Okay.
and always I will advise that you can make a folder date wise or subject wise. आपका जो डेस्कटॉप है वहां पे आप फोल्डर बना लो सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज, एंड फाइल का नाम भी आप इस तरह से दो, मींस रोल नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। वो अच्छा रहेगा क्योंकि यू विल नेवर माने मिस द एग्जैक्ट फाइल टू अपलोड। कभी कभी क्या होता है हम देखते हैं, सपोज आज फिजिक्स का एग्जाम है, कल मैथ का है, बच्चे क्या करते हैं ना, मैथ एग्जाम में फिजिक्स का पेपर भी अपलोड कर देते हैं। सो दिस थिंग्स हैपन इन पैनिक एक्चुअली। तो यू शुड अरेंज योर फाइल्स इन सच अ वे दैट लुकिंग एट द फाइल यू कैन टेल दैट दिस इज द फाइल फॉर टुडेज एग्जाम और दिस इज द फाइल फॉर टुमारोज एग्जाम, जो भी आपका है, जो यस्टरडे का एग्जाम, सॉरी नॉट टुमारो। तो फाइल का नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका सब्जेक्ट क्या है। एंड टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है आपका रोल नंबर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रोल नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट देने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। सो दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू दैट। या आप एग्जाम के लिए एक फोल्डर बना लो, उसमें एवरी टाइम आपका फाइल को डंप करना है, एंड दैट विल बी देयर विथ यू टिल यू आर गेटिंग योर रिजल्ट्स। ओके सर सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन में एक अटेम्प्ट करना है सिर्फ केमिस्ट्री में, या सारे सब्जेक्ट में एक ही अटेम्प्ट करना होगा? सभी में सब सेम फॉर्मेट। सेक्शन ए में कुछ आपको कॉपी में नहीं करना है, ओनली सेक्शन बी में आपको पेपर में लिख के फोटो लेके अपलोड करना है। सेक्शन ए में आपको कुछ चीज अपलोड करना नहीं है। आइदर यू हैव टू गो फॉर एमसीक्यू, मींस एबीसीडी दिया होगा, आपको एक आंसर देना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा जहां पे आपको कुछ लिखने के लिए पड़ेगा, आप सोच लो मैक्सिमम 1 or 2 लाइन्स यू हैव टू राइट, व्हाटएवर मे बी द क्वेश्चन। आपको एक ही 2 लाइन लिखना है, एंड वहां पे स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, तो डोंट ट्राई टू डू दैट। स्पेशल कैरेक्टर वहां पे अलाउड नहीं है। मॉड्यूल में कट पेस्ट का ऑप्शन भी नहीं है, कहीं से कट करके आप पेस्ट नहीं कर सकते। मॉड्यूल में एक चीज आप याद रखो, कभी मल्टीटास्किंग मत करना। एक चीज हो रहा है तो उसको होने दो, मींस आप अपलोड कर रहे हो, बीच में आप क्लिक कर रहे हो कुछ दूसरा चीज करने के लिए, तो दैट माइट क्रिएट ए प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन अपलोड करना है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब मेन एग्जाम दोगे आप, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन करना होता है, वहां पे आप एक क्वेश्चन अपलोड जब कर रहे हो ना, दूसरा क्वेश्चन आप लिखो आराम से बैठ के, वो उसको अपलोड होने दो। ओके, एनीवे अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 कोई चैतन्य, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं बोला कि नहीं, आपने लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, अब आई एक्सप्लेन। चैतन्य, आर यू देयर और नॉट? So he is writing in the chat. अच्छा अच्छा, हो गया। अच्छा ओके ओके, यस यस। और कुछ नहीं है तो आप यू गो थ्रू द क्लास नोट, आराम से आप क्लास नोट को पढ़ो, जो पढ़ाया गया है क्लास में, जो क्वेश्चंस मैं किया हूं। ओके, बी श्योर यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम दैट। आपको सब वहां से मिलेगा, बट यू शुड केयरफुली गो थ्रू द क्लास नोट्स एंड द प्रोसीडिंग्स। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, देयर इज अनदर क्लास इन मंडे। ओके, आई विल बी अवेलेबल, मैं रहूंगा। आप देखो, अगर आपको डाउट है तो यू कैन ज्वाइन। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी न्यू थिंग देयर, कुछ नया हम वहां पर डिस्कशन नहीं करेंगे। वंस यू फिनिश योर मिड सेमेस्टर वी कैन गो फॉर द न्यू डिस्कशन। ठीक है, यस सही है तो? सर मिड सेमेस्टर के बाद क्या कोई हॉलीडेज मिलेगा? मिड सेमेस्टर के, अच्छा मंगल सर फोन किए, एक मिनट। हाँ गुड मॉर्निंग सर। एक ये जो आपका जो टाइमिंग है, वहां पे आप 20 मिनट्स लिखे हैं अपलोडिंग टाइम।
मीन्स आप क्या 30 मिनट्स के बाद फिर एक्स्ट्रा 20 मिनट दे रहे हैं? अच्छा, हाँ, मैं तो 10 मिनट्स बच्चे को बोल दिया था, फिर देखा यहाँ पे 20 मिनट्स लिखा। हाँ, मैं भी दिया हूँ, मैं खुद दिया हूँ मेरा मेंटी को, बट मेरा 10 मिनट्स बैकग्राउंड में आइडिया है, तो मैं बच्चे को बोल दिया 10 मिनट्स। अच्छा, ओके। अच्छा, ये जो 20 मिनट्स प्लस ब्रेक, जो ब्रेक 5 मिनट्स मीन्स, अच्छा, दैट टाइम स्टूडेंट्स कैन नॉट यूटिलाइज ना, मीन्स 20 मिनट्स के उनका क्या खुद बंद हो जाएगा या स्टूडेंट हैज टू सबमिट? नहीं तो मीन्स स्टूडेंट्स अगर सबमिट का बटन नहीं देते हुए है तो ये ऑटोमेटिकली, अच्छा, ओके, थैंक यू। आज का मीटिंग कर रहे हैं 7 बजे, ओके, 7 PM, ओके। अच्छा, हेलो, आर यू देयर? यस सर। यस सर। ये तो अच्छा देखो, सेक्शन ए का जो 20 मिनट्स है, वो 20 मिनट्स में सेक्शन ए आपका ऑटो क्लोज होगा, ठीक है? That means if you are submitting before 20 minutes, it's okay. If you are not submitting before 20 minutes, आप जहां तक लिखे होंगे वहां तक वो सेव होके अपलोड ऑटोमेटिक होगा। Do you understand? यस सर। तो 20 मिनट्स में वो ऑफ हो जाएगा, मींस ऑटो अपडेट होके वो सबमिट हो जाएगा, इवन इफ यू आर नॉट सबमिटिंग। तो सेक्शन ए में आप 20 मिनट्स तक पूरा काम कर सकते हो। 5 मिनट का ब्रेक है, एंड आफ्टर दैट सेक्शन बी आपका ओपन होगा। सेक्शन बी में आपको 30 मिनट्स लिखने के लिए है एंड 20 मिनट्स अपलोडिंग के लिए है, ठीक है? मींस टोटल 50 मिनट्स है। मैं जो बोल रहा था आपको 10 मिनट्स, वो माइंड में था बिकॉज 10 मिनट्स पहले होता था, अभी उसको 20 मिनट्स कर दिए हैं, 10 मिनट्स बढ़ा दिए हैं, बट ये जो ड्राइव ऑप्शन वो हटा दिए। ओके, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। डोंट यूटिलाइज ए मिनट फ्रॉम दिस 20 मिनट्स। आपको 30 मिनट्स के अंदर लंग क्वेश्चन खत्म करके पूरा 20 मिनट्स आपको मिल रहा है अपलोड करने के लिए। आई थिंक कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से आप ट्रांसफर कर सकते हो फाइल। ओके, ओके सर। ठीक है, क्लियर, ये तो क्लियर है। बट रिमेंबर, नो ड्राइव ऑप्शन, तो इन्विजिलेटर के हाथ में कुछ नहीं है आपका फाइल अपलोड करने के लिए, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल in transferring this file to laptop and uploading within the time. Okay, और 20 मिनट से आप सोचोगे बहुत ज्यादा टाइम है, 5-10 मिनट में लिख लेता हूँ और ये मत करना करो, ठीक है? एंड आई थिंक 30 मिनट्स इज एनफ टू राइट ए लॉन्ग क्वेश्चन। 10 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स इज एनफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में लाइक विल इट हैव सब पास, सो एक ही कुछ ऐसा लेजेंडरी क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का? डेफिनेटली ब्रेकअप होगा। ओके सर, ओके, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन बोल देता हूँ अभी से। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो जैसे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आ सकता है क्या? मतलब 2-3 न्यूमेरिकल्स एक ही 10 मार्क्स के क्वेश्चन में? 2-3 न्यूमेरिकल्स? हाँ, ब्रेकअप तो होगा डेफिनेटली, बट 3 न्यूमेरिकल ऐसे ब्रेक करके नहीं आता है। जब क्वेश्चन ब्रेकअप होता है ना, कुछ एक रिलेशन होता है सब ब्रेक्स के अंदर ठीक है? जो ब्रेकअप कंपोनेंट्स होता है उसके अंदर कुछ रिलेशन होता है। जैसे कुछ एक रिलेशन पूछा है, उसके बाद उस रिलेशन को बेस करके कुछ और लॉजिकल क्वेश्चन या कुछ न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ब्रेकअप क्या इस तरह से होता है कि कुछ रिलेशन नहीं होगा, 3 क्वेश्चन एबीसी करके दे देंगे। ये क्या फॉर्मेट है? ऐसा नहीं। ओके, ओके सर। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर भी Monday I will be available. Thank you, sir. Monday I will be available. I am repeatedly saying, Monday in the class hour I will be available. If somebody wants to ask anything, you can join. Okay. Thank you sir. Thank you sir. Okay. Sir, is Monday a preparatory holiday?
देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है हॉलीडे हो ना हो, मैं आपको क्या बोला, आप आराम से प्रिपेयर करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू ज्वाइन इन द क्लास। ओके मोस्ट ऑफ द टीचर्स विल डू दैट। अगर आपको कुछ डाउट है तो यू ज्वाइन, ओके, बट इन द बिगिनिंग यू ज्वाइन सो दैट अदरवाइज आप सोचोगे नहीं आधा घंटा बाद ज्वाइन करूंगा तो अगर कोई नहीं होगा मैं कितना देर बैठे रहूंगा। ओके, so if you want to ask something you join in the beginning, okay, thank you sir, थैंक यू सर। अच्छा होगा एग्जाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।